So students, as you all know that we discuss about the lens and we discuss about every concept of the lens जो हम लोग कर सकते थे हम, और in the previous lecture हम लोगों ने उसके numerical भी किए. So what is the new thing that we are going to do in this today's lecture? So आज का हमारा जो नया पार्ट है जो हम लोग करने वाले हैं, that part is we are going to study the prism. हम प्रिज्म को एनालाइज करने वाले हैं जिसके बारे में आप लोगों ने 10th क्लास से सुना हुआ था. बट इन द 10th क्लास हम लोगों ने क्या सुना था, दैट व्हेन द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू द 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. कितने कलर्स में? 7 कलर जो हमारे पास विबग्योर है. बट आज मैं आपको 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट करना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको कुछ अलग चीज बताने वाला हूं प्रिज्म की. सो फॉर टुडे व्हाट वी हैव अ प्रिज्म as our main heading that we are going to start. Okay, so let's start with that and अभी हम लोग अपना काम कर लेते हैं. चलो, तो आज का हमारा हेडिंग है प्रिज्म. इंपॉर्टेंटली डन है. तो दिस इज आवर टुडेज हेडिंग जो हम लोग काम करने वाले हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे और इस चीज को चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लुक आउट द डायग्राम वेरी मच क्विकली बिकॉज एज यू नो दैट इन दी ray optics the ray diagram is plays a very important role. So diagram को सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज everything is going to lie in the diagram. Okay, so let's suppose we have a prism. चलिए एक prism ले आते हैं and to make that prism चलिए छोटा सा काम कर लेते हैं अभी. check this out. Okay, done it. Okay, let's suppose we have a prism, triangular prism, so that the shape would be accurate. हमारे पास shape बिल्कुल सही रहे. तो चलिए इस पे काम करना शुरू कर देते हैं. Done it. So we have a prism and let us give the name of that prism. इस prism को अपना एक नाम दे देते हैं. The name of the prism is A, B and C. So we have a prism name as A, B and C. The prism has the refractive index mu2 and the surrounding will have the refractive index mu1 such that I am mentioning such that mu2 is being greater than mu1. ये मैं mention कर रहा हूं, mu2 is greater than mu1. Mean the refractive index of the prism is greater than the refractive index of the surrounding. ये clearly ऊपर mention कर दिया गया. Now let us a light is incidenting on the AB surface. तो light जो है वो AB surface पे incident हो रहा है. Okay, so we will draw the normal. तो हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे. दिस इज आवर नॉर्मल. ओके, सो दिस इज बी नॉर्मल एंड लेट्स सपोज द नेम ऑफ दिस नॉर्मल इज एम. और ये हमारा कौन सा रे है? दिस इज आवर इंसिडेंट रे. ये हमारा इंसिडेंट रे है. इस बात को सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे. ओके, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे. सो दिस इज ये हमारा इंसिडेंट है. इसे आप लोगों लेना है. Okay. So let us incident angle, and this is the point P. The light rays try to traveling from to which medium? From rare to denser. So at P point, the light wants to travel from rare medium to denser medium. हमारी light rare से denser medium में travel करना चाहती है. So when the light want to travel from rare to denser, क्या होता है भाई? The light bend towards the normal. Light कहाँ जाता है? Normal की towards bend. लाइट को सीधा जाना चाहिए था. लाइट गेट बेंड टूवर्ड. एम आई क्लियर? सो लेट्स सपोज हमारा लाइट पे बेंड हो गया और इसे थोड़ा सा और ज्यादा बना देते हैं वे में क्लियर हो जाए. तो लेट्स सपोज द लाइट गेट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड द नाउ द लाइट रीचेस टू द पॉइंट Q. लाइट कहां पे पहुंचा? लाइट हमारे Q पॉइंट पे पहुंचा. दिस इज योर Q पॉइंट. ओके, ये हमारा Q पॉइंट है. Okay, so this green color is the green color light is being the refracted ray जो prism से pass हो रहा है, and this is our angle of refraction named as R1. Okay, now at Q point, at which point? At Q point, light wants to travel from where to where?
light wants to travel from denser to rare medium. So we will again draw the normal and let's suppose the name of this normal is n dash. इस normal का नाम क्या है? n dash है. इस normal का नाम क्या था? n था. Okay, this is the normal. And both the normals, जो ये दोनों normals हैं, both the normals will intersect or touches each other at point O. ठीक है? Okay, now the light want to travel from where to where? The light want to travel from denser to rare, and in denser to rare light goes, कैसा जाएगा light? The light goes away from normal. Light हमारा normal से away जाएगा. Okay, am I clear to that? So this is been the final ray which emerges out of the surface. ये वो ray है जो surface से बाहर निकला है. That's why we used to call this ray as a emergent ray. इस रे को क्या बुलाएंगे? We will call this ray as a emergent ray. And the corresponding angle made by this ray, इस ray ने जो corresponding angle बनाया, उस एंगल को हम E से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, लेट अस डिफाइन ऑल द एंगल. व्हाट इज I stands for? I stands for the incident angle. I क्या है? इंसिडेंट एंगल है. ऑन विच सरफेस? ऑन AB सरफेस. कौन से सरफेस पे? AB सरफेस पे. तो AB इज दैट सरफेस फ्रॉम विच द लाइट इज एंटरिंग. AB वो सरफेस है जहां से लाइट एंटर कर रहा है. तो दैट्स व्हाई we will call this AB surface as a incident surface. इसे आप लोग क्या बुलाएंगे? आप लोग इसे बुलाओगे इंसिडेंट सरफेस. क्या बुलाएंगे? इंसिडेंट सरफेस. क्लियर है? एंड द सरफेस थ्रू विच लाइट इज एग्जिटिंग, वो सरफेस जहां से लाइट बाहर निकल रहा है, we will call that surface as a emergent surface. Which surface? Emergent surface. रे को क्या बुलाएंगे? द रे विल कॉल एज इमर्जेंट रे एंड द सरफेस विल कॉल एज द इमर्जेंट सरफेस. एंड दिस करस्पॉन्डिंग एंगल E, दैट एंगल विल बी कॉल एज इमर्जेंट एंगल. उस एंगल को हम लोग क्या बुलाएंगे? वी विल कॉल दैट एंगल एज अ इमर्जेंट एंगल. हम उस एंगल को इमर्जेंट एंगल कॉल करने वाले हैं. इस बात को थोड़ा सा सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे. ठीक है? तो द एंगल विल बी कॉल एज इमर्जेंट एंगल. डन है? ये याद है? ओके. नाउ द एंगल विच इज इनक्लोज बिटवीन बोथ द रेज, वो एंगल जो दोनों रेज के बीच में इनक्लोज किया गया है, कहां पे? बिटवीन द इंसिडेंट सरफेस एंड द इमर्जेंट सरफेस. दैट एंगल विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए. उस एंगल को हम लोग A से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस A वुड कॉल एज प्रिज्म एंगल. What do you call that angle? We will call that angle as a prism angle. Okay, now one thing, एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं, please everyone, that we get confused that the meaning of the prism angle. Okay, the definition of incident angle you are all clear. The angle between incident ray and the normal ray. Emergent angle definition, I hope that also clear. The angle between emergent ray and the normal ray. But what is the prism angle? The prism angle is that angle which is enclosed between incident surface and emergent surface. ये है हमारा prism angle. बेटा ध्यान से दिख रहा है सबको? This is our prism angle. The angle between incident surface and emergent surface. ठीक है? तो emergent surface, okay, and on the other side we have incident surface. Okay, आप You can't call that sir the name is prism angle. ऐसा नहीं है कि आप ये कह दे कि सर ये तो prism angle है, तो prism angle है तो कोई भी हो सकता है यहां से. ठीक है? तो नेम इज प्रिज्म एंगल. इस चीज को प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें कि आप लोग ऐसे कॉल नहीं कर सकते कि दैट बी पॉइंट, द बी पॉइंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रिज्म. तो हम लोग इसे क्या बुलाना? ओके, वन मोर थिंग. चलिए एक बार वापस से देखते हैं इसे. सॉरी, ड्यू टू द सम इशू इट गेट deflected. Okay. Wait a second. Okay, sorry for that beta, interruption हो गया था एक छोटा सा. So now the point is that we cannot call the B point as a prism angle. हम B वाले पॉइंट को प्रिज्म एंगल नहीं बुला सकते. इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना प्लीज. एक बार इसे रिकरेक्ट कर रहा हूं प्लीज. ये थोड़ा सा एरर हो गया due to the technical fault. Our ray
आई एम अगेन रीड्रॉइंग दिस, मैं एक बार इसको रीड्रॉ कर रहा हूं. दिस वॉज द पॉइंट P, डन है, द पॉइंट P. फ्रॉम पॉइंट P वी ड्रॉ वन नॉर्मल. दिस वॉज आर नॉर्मल which interact with the another normal at O point. ठीक है, and this is your normal N. okay, ये हमारा normal N था. okay, one more thing that get missed, this ray and this surface was emergent surface. emergent surface. okay, okay, so storyline क्या, रे इंसिडेंट ऑन दी इंसिडेंट सरफेस, हमारी रे ए बी सरफेस पे इंसिडेंट हुआ. ओके, देन इट गेट रिफ्रैक्टेड. सो दिस पी क्यू, ये जो पी क्यू वाला जो ग्रीन रे है, ये हमारे रिफ्रैक्टेड रे को इमर्ज रिप्रेजेंट कर रहा है. At Q point, light is trying to travel from denser to rarer, so it get away. So we have three types of ray. हमारे पास यहाँ पे तीन तरीके का रे है जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ. The number one is the incident ray. First ray is which one? Incident ray. Second ray is the emergent ray. And there is one more ray that I want to represent, जो मैंने अभी नहीं दिखाया but मैं यहाँ लिखना चाहूंगा. The third ray is refracted ray. कौन सा रे? Refracted ray. Okay, I do not want to make the arrow, but I hope you are understanding this green light. ये जो green arrow है, ये जो green line है, यही हमारा refracted ray है. This PQ is the refracted ray. मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है? That in this angle is R1 और इस एंगल को R2 बोल देते हैं. Okay, done है? And this was our incident angle. ये हमारा angle of incident था. Am I clear to that? Okay. Now the storyline goes here. ये हुआ कहानी में that incident light ray falls on the incident surface. हमारी incident light ray AB surface पे fall करता है. Since it is traveling from rare to denser, so it get bent towards normal. And at Q point ये try कर रहा है denser to rare, तो ये away from normal चला गया. तो स्टोरी में हुआ ये that light want to travel in a straight line. लाइट कैसा चलना चाहता था? लाइट आपका स्ट्रेट लाइन में चलना चाहता था. इट वॉन्ट टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लुक, लाइट ऐसा जाता इफ देयर वॉज नो प्रिज्म. अगर यहां पे प्रिज्म नहीं होता तो आपका लाइट रे विल गो इन अ स्ट्रेट, बट ड्यू टू प्रिज्म हमारी लाइट ने अपना पाथ डेविएट कर दिया और फाइनली लाइट इज इमर्जिंग इन दिस मैनर. तो फाइनली लाइट इस तरफ जा रहा है. एम आई क्लियर? तो लाइट रे जाता स्ट्रेट, आपको इंक्लाइंड अपवर्ड, बट अब हमारी लाइट रे जा रही है इंक्लाइंड डाउनवर्ड में. सो लाइट गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ. जो लाइट है वो अपने पाथ से डेविएट हो गई है, अपने पाथ से भटक गई है. ओके, और दैट एंगल वुड कॉल एज एंगल ऑफ डेविएशन. इस एंगल को क्या बुलाने वाले हैं? एंगल ऑफ डेविएशन. चलो मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं. सबसे पहले दिस वाज द क्यू पॉइंट, ये हमारा क्यू पॉइंट था, ठीक है? एंड नाउ द लाइट जो अपने पाथ से डेविएट हुई है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज डेविएशन एंगल. विच एंगल? डेविएशन एंगल. ये है डेविएशन एंगल, ये आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है? सो डेल्टा रिप्रेजेंट एंगल ऑफ डेविएशन. डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन. सो हियर वी हैव फोर एंगल्स, फोर डिफरेंट एंगल्स हैं जो हमारे प्रिज्म में हुए. दैट वी हैव वन लाइट. Okay, I am talking about one light. One light means कैसा light है? मोनोक्रोमेटिक लाइट है. मोनोक्रोमेटिक लाइट. हमारी जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक है. मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटिक वर्ड मीन्स वेवलेंथ. इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है? हमारा लाइट कैसा है? सिंगल वेवलेंथ लाइट है. ओके, जिस व्हाइट लाइट को हमें 10th क्लास में स्टडी करवाया गया था थ्रू द प्रिज्म, पढ़ा था ना 10th क्लास में? सॉरी, दैट वाज व्हाइट लाइट. वो क्या था? वो व्हाइट लाइट था. एंड व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर. उसमें 7 कलर होते हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं. तो वो लाइट मल्टी वेवलेंथ है. कैसी है? मल्टी वेवलेंथ है. तो हम उसे मल्टी क्रोमेटिक भी बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं?
मल्टीक्रोमेटिक, उसके बारे में मैं आपसे माइट बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा, बट अभी के लिए हमारे पास सिंगल वेवलेंथ लाइट है। तो एक बार सारे बच्चे डायग्राम को दोबारा से देखेंगे। व्हाट हैपेंस, आवर सिंगल वेवलेंथ लाइट विल एंटर इनटू द प्रिज्म थ्रू द फेज AB। हमारी जो सिंगल वेवलेंथ लाइट है वो AB फेज से प्रिज्म में एंट्री करती है, और उस फेज को हम बुलाएंगे इंसिडेंट फेज या इंसिडेंट सरफेस बुलाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, लाइट गेट रिफ्रैक्टेड सिंस द लाइट इज बाउंड टू ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एंड देन लाइट रीचेस टू द पॉइंट Q। तब लाइट कहां पे पहुंचा, Q पॉइंट पे पहुंचा AC सरफेस पे, एंड दैट करस्पॉन्डिंग सरफेस को हम इमर्जेंट सरफेस बुलाते हैं, एंड फाइनली कम आउट। जहां पे हमारे पास कुछ एंगल हो गए, इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल। कौन कौन से एंगल है, वी हैव इंसिडेंट एंगल, वी हैव इमर्जेंट एंगल। एक बार इंडिकेट कर लेते हैं, वी हैव इंसिडेंट एंगल, वी हैव इमर्जेंट एंगल, वी हैव एंगल ऑफ डेविएशन, एंड वी हैव द प्रिज्म एंगल। जो हमारे पास 4 एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुके हैं। डन है, यहां तक डन है। ओके, नाउ व्हाट इज आवर टारगेट, आज का हमारा टारगेट क्या है और आज का हमारा मेन हेडिंग क्या है। ये तो हम लोगों ने प्रिज्म को पढ़ लिया, बट आवर मेन हेडिंग और द सब हेडिंग इज रिलेशन बिटवीन। जो हमें फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन I, E, del and A। sorry, we have to find out the relation between incident angle, जो आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, एंड द प्रिज्म एंगल। ठीक है, ओके। सो एंगल ऑफ डेविएशन आपको दिख रहा है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में जो एंगल है वो डेविएशन है। प्रिज्म एंगल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट सरफेस एंड द इमर्जेंट सरफेस। इंसिडेंट एंगल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इमर्जेंट एंगल, वो भी आपको क्लियर हो रहा है। यहां तक डन है सारी कहानी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, नाउ आई वांट टू आस्क वन थिंग, इज एनीवन डायग्राम प्लीज क्लियर ना हो? Is the diagram is clear to everyone, please? Diagram, because if you understand the diagram, then we can proceed to the derivation. तब हम लोग derivation में proceed कर सकते हैं। Okay, done, good। चलिए, so let's start with the derivation। Okay, चलिए derivation पे पार्ट पे अपना काम करना शुरू करते हैं, and I am going to start the derivation from this within this slide। इसी slide से मैं वो derivation पे काम करूंगा, because we need the help of the diagram। हमें डायग्राम की जरूरत होगी। ओके, तो हम इसे दिमाग में रखते हैं, एंड लेट्स चेंज सम कॉन्सेप्ट। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करके आते हैं, एंड लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज, ये जो एंगल आपके सामने ड्रॉ किया है, दिस एंगल इज Δ1 एंड दिस एंगल इज Δ2। ओके, Δ1 एंड Δ2 आर नॉट एनी पर्टिकुलर एंगल, कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं है, हमने बस अभी के लिए ले लिया। एंड द पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहा है सबको, द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे यहां पे अपीयर हो रहा है, लेट अस कंसीडर दैट पॉइंट एज अ S। ओके, नाउ एवरीवन, जिसके बारे में बात करनी है अपनी डायग्राम की तरफ ध्यान से देखिए प्लीज एवरीवन। इन ट्रायंगल PSQ, okay, are you getting this triangle? In this triangle, please apply the external angle property। external angle property लगाएंगे PSQ पे, ध्यान से दिख रहा है। So what is the external angle? The external angle is del, and what is the opposite interior angle? Is Del1 and Del2। So we can write del is equal to Del1 plus Del2, and this is our equation number 1। यानी angle of deviation is equal to Del1 plus Del2। Okay, now Del1 plus Del2। Now everyone, please reach to the point P। पॉइंट P पे जाएंगे सारे बच्चे। एट पॉइंट P, प्लीज अप्लाई द वर्टिकल अपोजिट प्रॉपर्टी। वर्टिकल अपोजिट प्रॉपर्टी लगानी है आपको P पॉइंट पे। सो एट P पॉइंट द वन साइड एंगल इज I एंड द अपोजिट साइड एंगल P के वर्टिकल अपोजिट में कौन है? Del1 एंड R1, ये दोनों है। ओके, सो P के अपोजिट में क्या वर्टिकल अपोजिट लगाते हैं, तो I वुड बी इक्वल टू Del1 plus R1। So from here, what would be the value of Del1? The value of Del1 would be I minus R1। Is that okay? ये वाला clear है Del1? By applying the vertical angle property at point P, the same concept we are going to apply at point Q।
हम यही कॉन्सेप्ट पॉइंट Q पर अप्लाई करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे इस पे। At Q point, again apply the vertical angle property. So at Q point, the one side angle is E, emergent. And what is the vertically opposite of the E? Del 2 plus R2. So we can say E is equal to del 2 plus R2. And from here, the del 2 is equal to E minus R2. So it means is that by applying the exterior angle property at point P and at point Q, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया? हम लोगों ने del 1 and del 2 फाइंड आउट कर लिया. Now use your equation 1. By equation 1. Equation 1 को use करेंगे everyone. Place the value of del 1 and del 2 in the equation 1. So del is equal to del 1. What is the value of del 1 that we are getting? This is I minus R1 plus delta 2. And what is the value of delta 2 that we are getting? E minus R2. Okay. So what is the del finally? I plus E minus R1 minus R2. और इसमें क्या कॉमन आएगा? नेगेटिव. तो हमारे पास क्या बचेगा? R1 plus R2. And this is our equation number 2. So till now, अब तक हम लोग कहां तक पहुंचे? Del is equal to I plus E negative R1 plus R2. Where del stands for angle of deviation. आप लोग clearly बिल्कुल bottom left side में देख सकते हो. The del represents the angle of deviation. I represent incident angle. E represent emergent angle. But what was our purpose? Our purpose was to find out the relation between deviation, incident, emergent and prism. So अभी भी एक एंगल मिसिंग है and that angle is the prism angle. यहां तक स्टोरी लाइन डन हो गई. Now we are going to proceed to the next slide. डन है? But to proceed in the next slide, first of all we need our diagram. हमें हमारा डायग्राम वहां पे चाहिए, क्योंकि without diagram we can't do anything. तो चलिए, I'm trying to copy this diagram. इस डायग्राम को चलिए एक बार कॉपी कर लेते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाएंगे, ताकि आप लोग इस डायग्राम को देखते रहें, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है. दिस डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू select this very much quickly. Till then please go through this concept. एक बार इस पूरे concept को अपने दिमाग में बिठाइए, that how we have find out the relation between angle of deviation. हमने कैसे angle of deviation को, okay, incident angle, emergent angle, prism angle, हमने इनको कैसे relate किया है, how we related all the things. Done है? Okay. Now we have proceed to our what? नेक्स्ट केस पे हम लोग आ चुके हैं. डन है? ओके. ओके, दिस वाज आवर डायग्राम ना. ये हमारी लास्ट स्क्रीन का यही हमारा पूरा का पूरा डायग्राम था, जो कि हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, सो दैट हमें हेल्पफुल मिले. सो वेयर वी लेफ्ट आवर डेरिवेशन, हम लोगों ने अपने एक्सप्रेशन को कहां पे लेफ्ट किया था? Our expression was left on this part, that angle of deviation is equal to incident plus emergent negative of R1 plus R2. Okay, now we are going to proceed. और डायग्राम सिंस हमारे सामने है, तो अब हमें बार बार पीछे की तरफ नहीं जाना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. चलिए अब इस पे काम करना शुरू कर देते हैं. Okay, now I am going to ask you on one thing. In quadrilateral, please everyone ध्यान से देखना. In quadrilateral, जिसके बारे में नाम लेने जा रहा हूं उसी को पे ध्यान देंगे. A P O Q. आपको एक quadrilateral दिख रहा होगा, A P O Q. And if I draw this quadrilateral on this side, I think ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. A P O Q. Okay, done है? Okay, now this at P point, ये जो हमारा PO है ये हमारा नॉर्मल है, तो that angle would be 90 degree. जो हमारा QO है, this QO line is also again representing the normal, तो ये भी हमारे पास 90 degree हो गया. So please apply the angle sum property here. यहाँ पे angle sum property लगाएं.
So what is the angle sum property for a quadrilateral? Angle A plus angle P plus angle O plus angle Q is equal to 360 degree. Clear है? But angle P and Q are 90 degree. हमारा P और Q 90 degree था. So what is P plus Q? So A plus O, P plus Q is 90, so it will become 180, which is equal to 360. And when we take the 180 on the other side, what we left with? We left with 180. So what we get? Angle A plus angle O is equal to 180 degree. We got one relation. Now, one more time. In triangle PQO, प्लीज ध्यान से देखिए अपने डायग्राम के अंदर ट्रायंगल PQO, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा. इन दिस ट्रायंगल प्लीज अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी. इस ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. एंड इन दिस ट्रायंगल R1, P पॉइंट पे इस ट्रायंगल पे R1 बन रहा है. R1 plus R2 and this angle is O is equal to 180 degree. Okay, so by studying the quadrilateral, एक हमें relation मिला A plus O is equal to 180, and by studying this triangle we got the R1 plus R2 plus O is equal to 180. चलिए दोनों को equate करते हैं, and if we equate both of them, because both the values are equal to 180 degree, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? R1 plus R2 plus O must be equal to A plus O. Is that step is clear? Okay, and this angle O will cancel with the angle O. And what we got the result? We got the result R1 plus R2 is equal to what? R1 plus R2 is equal to A. This has been very important result which is going to helpful in the numericals also. ये numericals में भी बहुत काम आने वाला है. That's why इसको highlighted कर लेता हूँ भाई यहाँ पे. So let it be in a highlighted manner. So हमारे पास क्या मिला? R1 plus R2 is equal to A. Now let's back to the previous slide, and in the previous slide what was the equation 2? चलिए इसे भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से. यहाँ बाद में फिर मेंशन करेंगे सर we are not getting the proper idea. This is our equation 2. डन है? ये हमारा equation 2 है. This was the equation 2 ना. ये हमारा equation 2 है जिसे हम लोग वापस से next slide पे लेके आएंगे. So equation 2 says that angle of deviation is equal to incident angle plus emergent angle negative R1 plus R2. And recently we got the value of R1 plus R2. कितना मिला? A मिला. तो I think हम लोग इसमें value में रख सकते हैं. तो del is equal to I plus E negative. And what was in the bracket? R1 plus R2, and R1 plus R2 is equal to A, where A stands for the prism angle. And here we have our final relation. The relation between what and what? Please एक बार mention कर लेते हैं. Del stands for angle of deviation. Deviation angle. So deviation angle is equal to what? Incident angle I, done है, plus emergent angle which is E, and negative prism angle यानी minus prism angle. Clear है? And I hope symbolically हम सब represent है. Prism angle is represented with the A, emergent angle is represented with the E, and incident angle is represented with the I. And this is how for a prism, एक prism के लिए light का bending काम करता है. यानी जब भी आपके प्रिज्म के अंदर the light enters, whenever the light enters through the one phase of the prism, it try to exit from the other phase. जब भी light एक phase से enter करेगा तो दूसरे phase से बाहर निकलेगा. So how much the light get deviated from its path? Light अपने रास्ते से कितना deviate हो गया, अपने रास्ते से कितना भटक गया, अगर सिंपल सी भाषा में बोले. So we find out that deviation angle. So deviation angle का expression please check this out. Okay, ray diagram in your note, आप लोग ray diagram एक बार बना लेंगे. You do not have to repeat this again. I have used this ray diagram in both the slide ताकि हम लोग clear रहें कि हमने कौन से quadrilateral को किस समय रखा. Am I clear? Okay. Till now, any issue in the ray diagram? Please यहाँ तक अगर कोई issue हो किसी को please वो बता दीजिए. अनुराग सर P and Q बता दो.
ओके, नाउ प्लीज लुक आउट द स्क्रीन यार, एक बार फिर से देखिए. व्हाट इज P एंड Q? दिस P एंड Q आर द नॉर्मल. यहां से देखिए PO है इन दिस क्वाड्रिलेटरल, दिस लाइन इज PO. और PO क्या है अपने डायग्राम में देखिए, PO नॉर्मल है. ठीक है. अनदर लाइन इज PA. और PA क्या है? PA इंसिडेंट सरफेस है. सो PA इज द सरफेस, PO इज द नॉर्मल. और सरफेस और नॉर्मल हमेशा कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे. सेम स्टोरी लाइन Q पे आएगी. QO इज द नॉर्मल एंड AQ इज द सरफेस. A से लेके Q तक सरफेस है, ओके, और QO नॉर्मल है, तो नॉर्मल फिर से 90. इट मींस एंगल P एंड एंगल Q बोथ आर गोइंग टू बी 90 डिग्री, क्योंकि वो दोनों नॉर्मल बना रही हैं सरफेस के साथ. डन है? ओके. सो टिल नाउ व्हाट वी डिस्कस, अब तक हम लोगों ने कहानी ये डिस्कस की, वी फाइंड आउट द रिलेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन in terms of incident angle, in terms of emergent angle and in terms of prism angle. अब तक हमने स्टोरी लाइन यहां तक की है. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब जो हम काम करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अगेन फाइंड आउट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है विद इन 5 to 10 मिनट्स, वी आर अगेन टू फाइंड आउट द रिलेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन. हम फिर से एंगल ऑफ डेविएशन का एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं, बट दिस टाइम इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. किसकी टर्म में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में. अगर आप अपने बैक साइड में ध्यान से देखें, हम लोगों ने एवरीथिंग को स्टडी किया, हर चीज को एनालाइज किया, बट हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में मेंशन किया था that the refractive index of the glass is mu2 and the refractive index of the surrounding is mu1. हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज नहीं किया. एक बार इसे वेरी मच क्विकली यूज कर लेते हैं, ठीक है, और इसे जल्दी से काम करके आगे प्रोसीड करवाते. सो प्रिज्म वही है, सारी स्टोरी लाइन वही है, तो वापस से सब कुछ वैसे ही होने वाला है जैसा अब तक हम लोगों ने स्टडी किया है. तो अगेन वी आर गोइंग टू टेक आवर प्रिज्म. हम दोबारा से अपने प्रिज्म को वहीं से पिक कर रहे हैं जहां से हम लोगों ने अपने प्रिज्म को रखा था. ठीक है. सो वी हैव यूज्ड द प्रिज्म अगेन. हम लोग अपने प्रिज्म को दोबारा से यूज करने जा रहे हैं भाई, है ना. सो दिस इज आवर प्रिज्म. दोबारा से यूज कर लेते हैं और एक बार दोबारा से रीड्रॉ कर लेते हैं. नॉट दैट मच, इस बार हमें ज्यादा नहीं चाहिए. A B C, दिस वॉज आर इंसिडेंट रे. एक बार दोबारा देख लीजिए ताकि हम लोग इसे जल्दी जल्दी कर दें. दिस वॉज आर नॉर्मल, angle of incident I, and this was the point P. Okay, rare to denser, the light bent towards the normal. So light get bent towards the normal and light reaches to the point Q. So at point Q we have again normal. हमारे पास दोबारा से एक normal बनेगा. Done है. And since we are going from denser to rare, so we will go away from normal. So mu2 is the refractive index of the glass, mu1 is the refractive index of the surrounding, and condition is again mu2 is greater than mu1. And this angle was emergent. This was R1, this was R2, और ये हमारा प्रिज्म एंगल था. ओके, डेविएशन को हम ऑलरेडी पहले भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं. लेट्स रिप्रेजेंट इट वन मोर टाइम. This might be the path of incident ray, this might be the path of emergent ray, and that angle is going to be deviation angle. ठीक है. Okay, now everyone, how we are going to relate the deviation, but this time we need the refractive index. So what we are going to do, check this out. इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पे ध्यान से देखना. So at point P, everyone, at point P, apply the Snell's law. स्नेल्स लॉ को प्लीज अप्लाई कीजिए, जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं. सो पी पॉइंट पे ध्यान से देखना. light want to move from rare to denser medium, means from mu1 to mu2. So what would be the Snell's law? mu2 divided by mu1 is equal to sin I divided by sin R1. Am I clear to that? But यहां पे एक assumption चलेगी, let I, R1, E and R2 are very small. ये जितने भी एंगल्स हम लोगों ने कंसिडर किए हैं, अगर ये वेरी स्मॉल होते हैं, इफ I, R1, E and R2, ये एंगल्स अगर वेरी स्मॉल हैं, तो साइन I would be nearly equal to I
and sin r1 would be nearly equal to r1. तो यहां से मेरे पास I का वैल्यू क्या आएगा? What would be the I? If you cross multiply, we will get mu2 by mu1 multiply with r1. Am I clear to that equation 1? हम लोगों ने I का वैल्यू निकाल लिया. Similarly, at point Q, please everyone go to the point Q and again apply Snell's law. फिर से Snell's law अप्लाई करेंगे प्लीज एवरीवन Q पॉइंट पर. सो एट पॉइंट Q if we apply the Snell's law, अगर हम लोग वापस से Snell's law को अप्लाई करते हैं तो what will be the relation? At point Q हमारा लाइट कहां से कहां जा रहा है? हमारा लाइट जा रहा है mu2 से mu1. So the relation would be mu1 by mu2, mu1 divided by mu2. mu1 में एंगल क्या बन रहा है? E. That will go in the reciprocal as per our shortcut trick. और mu2 में एंगल बन रहा है R2, that will go. But since again assumption पहले ही mention कर दी गई है that I, R1, E, R2 are going to be very small. So if they are going to be very small, so it would be R2 divided by E. And from here, what would be the value of E? If we cross multiply, we will get mu2 by mu1 multiply with R2. This is our equation 2. So in equation 1 we got the value of I, in equation 2 we got the value of E. हमें वो मिल गई. But since we know that अभी हमने प्रूफ किया है that angle of deviation is equal to I plus E minus A. ये अभी हम लोग वेरीफाई करके आए. Just put the value of I and E in this equation. Just value put करनी है और कुछ नहीं करना आप लोगों ने. So angle of deviation would be I. What is the value of incident? mu2 divided by mu1 multiply with r1. What is the value of emergent? Equation 2 value रखिए. It would be mu2 divided by mu1 multiply with r2 minus a. So क्या कॉमन आ रहा है? Just you have to solve it mathematically. mu2 by mu1 is common. What left? r1 plus r2. Negative a as it is. And what is R1 plus R2? अगर आप ध्यान करें अभी लास्ट स्लाइड में हमने इसे डन किया था. R1 plus R2 is numerically equal to A. तो हम लोग इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? A. So del is equal to mu2 divided by mu1 A negative A. डन है. और अभी भी क्या कॉमन आ रहा है? A. तो प्रिज्म एंगल कॉमन आया तो हमारे पास क्या बचा? mu2 divided by mu1 minus 1 and A is common. This is our final relation for angle of deviation. क्या रिलेशन आया एंगल ऑफ डेविएशन का? mu2 refractive index of glass divided by refractive index of surrounding minus 1 into A. Am I clear? तो अगर ये स्टोरी लाइन है तो आज के कंक्लूजन्स क्या हैं? एक बार जल्दी से कंक्लूजन्स देख लेते हैं. So what are the results? There are two results that we discussed today. Number 1, angle of deviation is equal to incident angle plus emergent angle negative of prism angle. Del is equal to what? I plus E minus A. And recently जो अभी हमने एक और del का relation निकाला है, that relation is mu2 by mu1 minus 1 into A. Okay, now हम यहाँ पे condition बना सकते हैं if mu1 is 1. अगर हमारे सराउंडिंग में कौन सा मीडियम आ जाए? एयर. तो अगर हम mu1 को एयर एज्यूम कर लेते हैं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम है, तो डेविएशन एंगल क्या बनेगा? mu minus 1 into A, where mu represents refractive index of prism. Am I clear? तो यहां से आज हमने टू रिलेशंस को देखा और ये जो सेकंड रिलेशन है इसका भी कंक्लूजन निकाल सकते हो that how the angle of deviation relate with the refractive index of the glass or the prism directly proportional. इसका मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा आपका लाइट का बेंडिंग, आपका लाइट का डेविएशन उतना ही ज्यादा होने वाला है. क्लियर है? सो दिस इज बीन टुडेज लेक्चर वेयर वी डिस्कस अबाउट द प्रिज्म, बट हियर वी डिस्कस अबाउट ओनली सिंगल वेवलेंथ लाइट. हमने केवल सिंगल वेवलेंथ लाइट के बारे में यहाँ पे डील किया है और किसी के बारे में बात नहीं की. मल्टी क्रोमेटिक यानी व्हाइट लाइट के बारे में अभी बात ही नहीं करेंगे. अभी केवल एक वेवलेंथ की लाइट के बारे में यूज कर सकते हो, वो सिंगल वेवलेंथ कोई भी हो सकती है. ओके, सो फर्स्टली वी रिलेट एंगल बिटवीन डेल आई एंड ई. सबसे पहला हम लोगों ने रिलेशन निकाला
एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल माइनस इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल माइनस प्रिज्म एंगल। बट इसमें एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हाईलाइटेड है, दैट R1 प्लस R2 इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रिज्म एंगल, जो हमें यहां से पता चला। ओके, एंड देन वी फाइंड आउट द रिलेशन फॉर व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। फिर हम लोगों ने एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक रिलेशन निकाला है, बट इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो व्हाट इज द डेल? Del is equal to mu2 minus mu2 divided by mu1 minus 1 into 8. And here we are with the both the results जो हम लोगों ने आज सीखे। Okay, done है? चलिए, so now just let me know यहां पे कोई भी इशू यहां तक, everyone done? That's all.